محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ کسی کا حق نہ مار بیٹھنا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی دبا لی تو قیامت کے دن دبائی گئی زمین کے برابر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ تلنگانہ حکومت ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار۔ کورونا کے مد نظر ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے ریاستی وزراء و محکمے طب و صحت کے ذمہ داروں کے ساتھ عمل میں لایا جائزہ اجلاس۔ متحدہ ضلع میں دیکشا دیوس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے TRS قائدین کی جانب سے مختلف تقاریب کا انعقاد۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR، ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی اور ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ شہر نظام آباد میں حضرت سید علی پاشا قادری الموسوی الجیلانی جانشین حضور سید کاظم پاشا قادری الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد و شہر کے مشہور معروف تاجر سید عبدالکریم قادری صاحب کی جانب سے تعمیر کردہ مسجد کا کیا افتتاح۔ ضلع میں الیکشن کوڈ برخاست تمام عہدیدار شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کریں۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کا اجلاس سے خطاب۔ شہر کے موسم میں پھر آئی بڑی تبدیلی، سردی کی لہر میں اضافہ، آسمان ابر آلود۔ 1 دسمبر تک مزید سردی کی لہر کا محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش قیاسی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کامیابی کا وعدہ نماز، انسان کو برائی سے دور رکھنے والی نماز۔ نماز کو سکون و صبر و خوشی کے ساتھ وقت مقررہ پر ادا کرنے پر دونوں جہاں کی نعمتیں ہوگی حاصل۔ مسجد محبوب حسین کی افتتاحی تقریب سے حضرت سید علی شاہ قادری الموسوی الجیلانی کا خطاب و مسجد کی تعمیر پر متولی سید عبدالکریم قادری کو پیش کی گئی مبارکباد۔ کیوں اداس پھرتے ہو، راحتیں بلاتی ہے، آؤ اے مسلمانوں، مسجدیں بلاتی ہے۔ آج شہر نظام آباد کے علاقے وادی حسینی، جہاں پر کئی مکانات موجود ہونے کے باوجود مسجد نہ ہونے کے سبب مقامی عوام کو مختلف دشواریاں درپیش تھی، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر نظام آباد کے مشہور معروف تاجر سید عبدالکریم قادری صاحب کی جانب سے مسجد محبوب حسین کی تعمیر 500 گز اراضی پر کی گئی، جس کا افتتاح حلقہ دکن و ہندوستان کے مشہور معروف عالم دین حضرت علامہ و مولانا الحاج سید آل مصطفیٰ صاحب قبلہ المعروف سید علی پاشا قادری الموسوی الجیلانی جانشین حضور سید کاظم پاشا قادری الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ و سجدہ نشین خانقاہ قادریہ الموسیہ حیدرآباد کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے حاضرین مجلس کو نماز کی اہمیت کے بارے میں عوام کو واقف کروایا اور عوام کو وقت مقررہ پر بجماعت نماز ادا کرنے و سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں جس طرح مساجد کو ایک مرکزیت حاصل تھی، اسی طرز پر اس مسجد میں بھی تمام شعبے جات کا قیام کرنے کی انہوں نے اپیل کی۔ بعض عوام کی جانب سے متولی مسجد سید عبدالکریم قادری و حضرت علی پاشا سرکار کی شہر نظام آباد کے مختلف تنظیموں کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کو تہنیت دی گئی۔ اس موقع پر ریڈکو چیئرمین SC علیم نظام آباد، سینئر انجینئر ولی الدین صدیقی، مولانا کریم الدین کمال، عاشقان پنجتن کمیٹی کے اراکین، منہاج القرآن ذمہ داران و دیگر موجود تھے۔ یہ نماز کی کیفیت ہے، دیکھیے آپ، یہ نماز کی کیفیت صحابہ ویسے ہی یا مولا سجدے میں تھے، کشتی علی کو پتہ بھی نہیں چلا، اب یہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، مولا ان کی طرف دیکھے کیا بات ہے، بہت مسکرا رہے ہو، تو کہا اے علی
हमने आपके पैर से कील खींच ली, खून का फव्वारा निकला और आपको पता तक नहीं चला। तो अली मुर्तजा ने फरमाया, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ, देखिए तवज्जो से सुने, अली जब नमाज पढ़ता है तो ऐसी नमाज पढ़ता है कि उस वक्त तक सजदे से सर को उठाता नहीं जब तक अपने रब का दीदार नहीं कर लेता। ये इन्हमाम नमाज में होना चाहिए। और एहसान की तालीम भी यही है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर से आए थे, इस्तिफसार करे थे। एक बात याद रखें, जब नमाज के लिए ठहरे तो हुजूर ने फरमाया, एहसान की तालीम में से है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख रहे हो, या फिर ऐसे पढ़ो कि खुदा तुमको देख रहा। ये दो सूरतें होनी चाहिए। काबिल मुबारकबाद है ये लोग जिन्होंने हमारे करीम कादरी साहब सैयद साहब, उनकी आल औलाद फरहान कादरी हैं, उनके भाई रोमान हैं, उनके छोटे भाई रिजवान सैयद साहब हैं, अमान कादरी हैं, और इनके जितने रफ़क़ा ने इसमें हिस्सा लिया है। यकीन जाने हदीस शरीफ है, सही सियासतदान की बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि अगर किसी ने मस्जिद बनाई तक़वे की बुनियाद पर और इखलास की बुनियाद पर, अगर चील के घोंसले की उतनी भी मस्जिद बनाई, ये तो माशाअल्लाह देखिए आप कितनी बड़ी मस्जिद है, यहाँ पर तो सैकड़ों हजारों चील के घोंसले बन सकते हैं। ये पूरे इलाके में प्रोवाइसिस में हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अगर चील के घोंसले की उतनी भी मस्जिद बनाई तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में इसके अवज़ में उसके लिए एक महल बनाएगा। ये मस्जिद बनाने वालों को तो आपने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में महल बनाएगा, लेकिन याद रखें अगर इखलास की बुनियाद पर छोटी सी जगह पर भी आपने मस्जिद की तामीर की, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदूर के बाद बहुत बड़ा इसका इनाम है। तो काबिल मुबारकबाद हैं जनाब सैयद अब्दुल करीम कादरी साहब, उनके फर्जंदान, हमारे उलमा, इस मोहल्ले के रहने वाले बसने वाले। जब तक यहाँ पर अजान होती रहेगी उस वक्त तक आपको अजर सवाब मिलता रहेगा, भलाइयात इस मोहल्ले से दूर होती रहेगी। मस्जिद नबवी की तामीर के लिए हुजूर ने जब जगह पसंद फरमाई तो यतीम बच्चों की जगह थी। किसकी? दो यतीम, सहल और सोहेल नाम आता है। हुजूर ने कहा साहबा ने जगह अच्छी, हुजूर ने फरमाया मैं कीमत अदा कर लूंगा। ये नहीं कि देखें मस्जिदें बनती हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी बुराई है कि चबूतरा आगे बढ़ा लेते। आप घर का बढ़ा लीजिए, अल्लाह के घर का मत बढ़ाइए। लाइट में चोरी हो जाती है, यहाँ तो नहीं होगी, अक्सर हमारे पास मस्जिदों में, हैदराबाद में भी ये बड़ा बड़ी शामिल है, लाइट में चोरी हो जाती है। वो अलग बात है, आगे बढ़ जाते, पड़ोसी की दीवार बोलते मस्जिद की दोनों पिक्चर तो नहीं। दोस्तों हुजूर की सुन्नत करीमा क्या है? हुजूर ने कहा इसकी कीमत अदा करो, कहा 10 दीनार मुकर्रर हुई। हुजूर पाक ऐसा देखे, अमीरुल मोमिनीन सैयद अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले आगे बढ़े। मुस्लिम शरीफ सियासत की हदीस मुबारक है, और कहने लगे या रसूलल्लाह इसकी कीमत मैं अदा करूंगा। इस जमीन की कीमत तो हुजूर ने क्या बशारत अता फरमाई है पता है? अबू बकर जिस वक्त तक यहाँ पर आजाद होती रहेगी, क़यामत तक यहाँ नमाज होती रहेगी, उन तमाम नमाजों का सवाब तुझको मिलता रहेगा, और तू मर जाएगा उसके बाद भी अल्लाह के पास ये सिलसिला मुनक़ते नहीं होगा। तो यहाँ जितने सजदे होंगे, जितनी अज़ानें होंगी, जितनी इबादतें होंगी, सुन्नत होंगे, नवाफिल होंगे, मस्जिद बनाने वाले, उनके घर परिवार, उनकी औलाद को जीते जी और मरने के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के ज़ेरे निगरानी में आर्मर मजलिस बल्दिया के अहाते में वाक़े मामड़ी पल्ली में कम्युनिटी रब्त प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने आर्मर मजलिस बल्दिया के अहाते में वाक़े मामड़ी पल्ली में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर पुलिस मुलाजमिन के अमरात तमाम मकानात में मुक़ीम अफराद खानदान से मुताल्लिक़ तमाम तरीन तफसीलात हासिल की। वो बातज़ात CP कार्तिकेय ने हनुमान मंदिर में क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान मंशियात की लत में मुब्तला न होकर मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने की बात बताते हुए तमाम मोटरसाइकिल सवार अफराद को यकीनी तौर पर गाड़ी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात अपने साथ रखने की हिदायत देते हुए बताया कि दौरे हाजिर में साइबर जराइम के बढ़ते हुए वाक़यात के तनाज़ुर में अवाम को अपने बैंक और डिजिटल लेन देन पिन नंबर व दीगर तफसीलात को किसी से भी शेयर न करे, और इसी तरह से तमाम मुकामी अफराद अपने इलाकों में CC कैमरे का क़याम अमल में लाकर चोरी के वाक़यात को रोकने का इजहार किया। యూత్ మిస్సింగ్ గా ఉంటారు, వెనక నాకు యూత్ కనిపిస్తున్నారు। యూత్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్। యువకులు అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్। యువకులలో ఒక క్వాలిటీ ఉంటుంది, భయం ఉండదు।
భయం ఉండదు, కొంచెం బలం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఏదైనా పని చేస్తే ఒక సీనియర్ మెంబర్కి చెప్తే రకరకాలైన మాట వింటారు, రకరకాలంటే ఐడియాస్ వస్తాయి. అరే ఇట్లా చేస్తే అది ఉంటుంది, ఎట్లా చేస్తే ఉంటుంది, ఇక్కడ నొప్పి వస్తుంది, అది ఉంటుంది. యూత్కి చేస్తే బాబు వస్తావా చేస్తావా అంటే జోష్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హృదయం నుంచి ఆలోచించడం చేస్తారు, మైండ్ నుంచి తక్కువ ఉంటుంది, జోష్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫియర్లెస్ ఉంటారు యూత్. సో ఏదైనా మా పోలీస్ ఆఫీసర్కి కూడా మా రిక్వెస్ట్, వెన్ ఎవర్ యూ డూ కమ్యూనిటీ పోలీసింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి, ప్లీజ్ ఫోకస్ అండ్ ఇన్వాల్వ్ ద యూత్. సో యూత్ షుడ్, మీరు కూడా అందరు మీకైనా సమస్యలు మీరు ఫ్రీగా రావాలి. ఇప్పుడు గంగాధర్ గారు ఉన్నారు కదా, గంగాధర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఆయన ఇక్కడ సమస్యలు చెప్పినారు, ఓపెన్ డ్రింకింగ్ నడుస్తుంది. సో దయచేసి గంగారెడ్డి గారు ఎక్కడున్నారు, ఓకే. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లంలో SHO గారు అండ్ ఆల్ ACP గారు డెఫినెట్లీ దీంట్లో ఇమీడియట్లీ యాక్షన్ స్టెప్ తీసుకోవాలి. जमातुल अहले हदीस बोधन की जानिब से शानदार पैमाने पर इज्तिमाई आम का इनेकाद, मशहूर मारूफ उलमाए-ए-दीन ने की शिरकत। 28 नवंबर बवक्त शाम 6 बजे बोधन में एक इजलास आम मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत जनाब अब्दुल वाजिद साहब अमीर ज़िला जमातुल अहले हदीस ने की। ज़ेरे निगरानी जनाब वजहुल्लाह खान साहब नाज़िम ज़िला निज़ामाबाद व अब्दुल वहाब साहब अमीर निज़ामाबाद व अब्दुल वहाब साहब अमीर बोधन बहैसियत मुक़र्रर फ़ज़ीलतुल शेख जलालुद्दीन क़ासिमी हफ़्ज़हुल्लाह ने मिनहाजुल हदीस की मौज़े पर लबकुशाई की। मौसूफ़ ने बताया कि अहले हदीस का मिनहाज वही है जो सहाबा इकराम का मिनहाज है। हदीस तो सभी बताते हैं, मगर सही हदीस और सहाबा का मिनहाज ही असल में अहले हदीस का मिनहाज है। दूसरे मुक़र्रर फ़ज़ीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़्ज़हुल्लाह ने ईमान और आज़माइश पर बयान किया। यूँ तो आज़माइश हर इंसान के साथ है, मगर आदमी सब कुछ खोकर ईमान हासिल कर ले, यही असल है। आपके बाद फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ इमरान नज़ीरी हफ़्ज़हुल्लाह नाज़िब दारुल तौहीद रहमानिया ने इस्लाह माशरे पर तकरीर पेश की, जिसमें मौसूफ शिरकत की और नौजवानों की बेराहरुई को बताया। और आखिर में जनाब मोहम्मद अली साहब हफ़्ज़हुल्लाह ने तेलुगु ज़बान में तकरीर की। जलसियाम में अव्वाम ने कसीर तादाद में शिरकत फरमाई। मुंजनाब ज़िला जमातुल अहले हदीस निज़ामाबाद में सर्दी की शदीद लहर, अव्वाम को मोहतात रहने का मशवरा। ज़िले निज़ामाबाद में मौसम में नुमाया तब्दीली आने की बिना पर सर्दी की शदीद लहर के अलावा ज़िले में मतला अबरालुद है। इस तरह से मौसम सरमा में मौसम की तब्दीली, सर्द हवाओं, हल्की बारिश और मतला अबरालुद रहने पर अवाम की सेहत भी मुतासर हो रही है। सर्दी, खांसी वो सरदर्द की शिकायतें आम है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के दोबारा फैलने के इम्कानात के तनाज़ुर में कमसन बच्चों, ज़ईफ़ अफराद को मोहतात रहने का डॉक्टरों की जानिब से मशवरा दिया जा रहा है। सर्द हवाओं के सुबह से शाम तक चलने पर अवाम बिलखुसूस मौमरिन का बाहर निकलना मुश्किल बना हुआ है। मज़ीद चंद घंटों तक सर्द हवाओं के साथ साथ मतला बरालूद रहने का महकमे मौसमियात की पेशकयासी के तनाज़ुर में अवाम को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना होगा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए निजाम सागर मंडल आचमपेट के पले प्रकृति जंगलात का लिया जायजा। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने दौरा करते हुए निजाम सागर मंडल आचमपेट के पले प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा करते हुए कहा कि जंगलात और दरख्तों की मौजूदगी हो तो माहौल भी काफी सरसब्ज और शादाब होता है। कुदरती और ताज़ा हवा इंसानी जिंदगी के लिए काफी कारआमद होने की बात बताते हुए कहा कि हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के इतराफ एक नाफ पेड़ व पौधों की अफजाइश करते हुए माहौल को हरा भरा रखने से इंसानी जिंदगी के लिए बहुत मुफीद साबित होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ RDO राजा गौड़, अवामी नुमाइंदों, ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल के तलबा की जानिब से गुस्ताखे रसूल वसीम रजवी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज दर्ज। भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल के तलबा की जानिब से गुस्ताखे रसूल वसीम रजवी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज दर्ज। RDO दफ्तर पर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि वसीम रजवी की इस गुस्ताखाना हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बातजात तलबा शाफिया जरी ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी मज़ाहिब के खिलाफ इस तरह के अल्फाज और हरकत नाकाबिले बर्दाश्त होगी और
साथ ही बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत वसीम रजवी को सजा का मुस्तहिक नहीं बनाती है तो हम इसको सजा का मुस्तहिक बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे मुक़द्दस कुरान और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगियों से ज्यादा कीमती है। और आखिर में बारगाह इलाही के सामने हाथ उठाकर ये बद्दुआ की कि इस मलून को हिदायत दे या फिर इस शैतान को निस्तो नाबूद कर दे। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट शेख अहमद साहिल, प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरानुद्दीन, मुदरिस शेख अजहर, शेख फारूक के अलावा तुलबा मौजूद थे। कार्तिकीय मौसम के पेश नजर मेयर ने अपने अफराद खानदान के हमरा कंटेश्वर में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। शहर के मेयर नीतू किरण ने आज कार्तिकीय मौसम के पेश नजर अपने अफराद खानदान के हमरा कंटेश्वर में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। बातज़ा मंदिर कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से मेयर वर्कान खानदान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। वह इस मौके पर अक़ीदत मंदों की भारी तादाद नजर आई। इस प्रोग्राम में मकरान व दीगर ने शिरकत की। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निमटने हुकूमत तैयार, अवाम खौफजदा न हो, एयरपोर्ट पर चौकसी टीका अंदाजी पर तवज्जो दी जाए। वजीर सेहत हरीश राव का आला सतही इजलास। कोरोना से ज्यादा खतरनाक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निमटने के लिए तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह तैयार है और अवाम को खौफ व दहशत का शिकार होने की जरूरत नहीं है। वजीर सेहत हरीश राव ने आला अहदेदारों के साथ इजलास में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मंजर-ए-आम पर आने की सूरत में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया। अहदेदारों ने बताया कि कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर के लिए हुकूमत ने पहले ही एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसी के जरिए नए वेरिएंट से बआसानी निपटना जा सकता है। वज़ीर सेहत ने अहदेदारों से कहा कि नए वेरिएंट से निपटने के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर और अवाम को बाशऊर बनाने में कोई कोताही न रहे। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी ने बताया कि मुल्क में कहीं से भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मंजर-ए-आम पर आने की कोई इत्तला नहीं है और तेलंगाना में भी अभी तक एक भी केस मंजर-ए-आम पर नहीं आया है। इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका, हांगकांग और बाज़ यूरोपीय ममालिक में ये वेरिएंट पाया गया है। इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर एयरपोर्ट्स पर निगरानी में इजाफा कर दिया है। इन ममालिक से आने वाले अफराद का लाजमी तौर पर टेस्ट किया जाएगा और पॉजिटिव आने की सूरत में 14 दिन की होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जाएगी। इन्होंने कहा कि ऐसे मुसाफिरीन जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक हासिल कर ली हो, इन्हें एहतियाती तौर पर होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। वैक्सीन हासिल न करने वालों का टेस्ट किया जाएगा। श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ है। रोजाना 150 से 170 केस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए बजरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब। ज़िले अहदेदार महकमे अखलाती बहबूद हैदराबाद ने अपने सहाफती बयान में कहा है कि तालीमी साल 2021 स्प्रिंग सीजन और फॉल सीजन के लिए महकमे अखलाती बहबूद रियासत तेलंगाना की जानिब से बैरूनी ममालिक में आला तालीम, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट की वसूली के लिए अखलाती तलबा और तालिबात से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत बजरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं, जिसके लिए आधार कार्ड, तलबा व तालिबात की उम्र बतारख 26 अक्टूबर 2021 तक 35 साल से जायद न हो, वालिदैन की सालाना आमदनी 5 लाख से जायद ना हो, जात का सदाकतनामा, तलबा व तालिबात का अखलाती तबके से वाबस्ता होना लाजमी है। डिग्री इंजीनियरिंग में 60% निशानात की वसूली के साथ मास्टर डिग्री के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% निशानात की वसूली के साथ PhD में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा अहले IELTS, TOEFL या GMAT, GRE कोर्सेज में 60% निशानात हासिल किए हों। साल 2021 स्प्रिंग सीजन और फॉल सीजन तक मुंतखबा बैरूनी यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले चुके। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट पर मुलाहिजा किया जा सकता है। दरख्वास्त के अदखाल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 शाम 5 बजे तक है। अखलाती तलबा के लिए फीस रिम्बर्समेंट की अदम इजराई, स्कूल्स और कॉलेजेस इंतजामिया को मुश्किलात, हुकूमत की टाल मटोल की पॉलिसी। अखलाती तलबा और कॉलेजेस को अदा की जाने वाली स्कॉलरशिप्स के अलावा कॉलेजेस को जारी की जाने वाली फीस, बास अदायगियों की रकमात की अदम इजराई और इसमें होने वाली ताख़ीर के लिए सरकारी सतह पर अहदेदारों की जानिब से मुख्तलिफ बहानेबाजियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से स्कूल व कॉलेज इंतजामिया को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
और तलबा को भी स्कॉलरशिप मौसूल न होने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पोस्ट मैट्रिक तलबा को जारी की जाने वाली स्कॉलरशिप्स की अदम इजराय के मुतालिक किए जाने वाले सवाल पर अब महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि रकम की इजराय में होने वाली ताख़ीर की वजह रियासत में जारी अरकान कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में नाफिज किया जाने वाला इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की सूरत में नई स्कीमात का ऐलान नहीं किया जा सकता, लेकिन जो स्कीमात जारी है इनमें रकमात की इजराय में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से कोई रुकावट पैदा नहीं होती। मगर जब बात अखिलती स्कीमात की आती है तो इसके साथ ही महकमे जाती अहदेदारों को वो तमाम रहनुमायाना खतूत या क़वानीन याद आने लगते हैं जिनके जरिए इनकी स्कीमात को ज़ेर-ए-इल्तिवा रखा जा सके या इनमें ताख़ीर होने लग जाए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर कॉलेजेस के जिम्मेदारों ने बताया कि इन्हें 2 माह कबल कहा गया था कि नवंबर के वस्त में तमाम बकायाजात की अदायगी अमल में लाई जाएगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है, इसीलिए रकमात की इजराई में ताख़ीर होने लगी है और अब रकमात दिसंबर के आखिर में ही जारी किए जा सकेंगे। महकमे अखिलती बहबूद के अहदेदारों ने बताया कि वो अपने तौर पर ये नहीं कह रहे कि बल्कि महकमे फाइनेंस की जानिब से जो इन्हें कहा जा रहा है वो कॉलेज इंतजामिया के जिम्मेदारों को बता रहे हैं। अहदेदारों ने इस बात का इतराफ भी किया है कि महकमे फाइनेंस की जानिब से अखिलती बहबूद के लिए बजट की इजराई में ताख़ीर के लिए बहानेबाजी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ भी करने से कासिर है। मुंतखब अखिलती नुमाइंदों को बजट के अदम इजराई के सिलसिले में मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा लेते हुए महकमे फाइनेंस के अहदेदारों से नुमाइंदगी करनी चाहिए ताकि मसला हल हो सके। ओमिक्रॉन से निपटने सफरी पाबंदियों में मजीद सख्ती, मरकज की नई हिदायत, खतरे के मुमालिक से आने वालों को 2 हफ्तों की सफरी तफसील पेश करनी होगी, नेगेटिव रिपोर्ट और 7 दिन खरतीनिया लाजमी। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने सफरी पाबंदियों में मजीद सख्ती पैदा कर दी और खतरा वाले मुमालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए शराइत को सख्त कर दिया है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इन मुमालिक से जहां इस वायरस का खतरा है, आने वाले मुसाफिरीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने 14 दिन की सफरी तफसील के साथ कोरोना की मनफी रिपोर्ट अपलोड करें। ये रिपोर्ट भी सफ़र से 72 घंटे अंदर की होनी चाहिए। इसके अलावा इन मुमालिक से आने वाले मुसाफिरीन के लिए लाजमी रहेगा कि वह हिंदुस्तान आमद के बाद 7 दिन घरों में खरतीनिया रहे। वज़ारत सेहत ने निसरसानी शुदा सफरी रहनुमा खतूत बराए बैनुल अक़वामी मुसाफिरीन जारी करते हुए ये तफसील बताई है। कहा गया है कि मुसाफिरीन के लिए ज़रूरी होगा कि वो ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन पेश करें, जिसमें गुज़िश्ता 2 हफ्तों की सफरी तफसीलात पेश करें। इन्हें अपनी कोरोना की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। ये टेस्ट अंदरून 72 घंटे किया गया होना चाहिए। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के दुरुस्त होने का एक डिक्लेरेशन भी पेश करना होगा। रिपोर्ट्स में उलटफेर करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जा सकते हैं। इन नई शराइत पर 1 दिसंबर से अमलावरी होगी। हुकूमत ने 12 ममालिक को एड्रेस के फहरिस्त में शामिल किया और इनसे आने वाले मुसाफिरीन की टेस्टिंग और इजाफी निगरानी का फैसला किया गया है। इन मुसाफिरीन को हिंदुस्तान में एयरपोर्ट आमद के बाद भी कोरोना टेस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट का एयरपोर्ट पर इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही वहां से जाने या कनेक्टिंग फ्लाइट लेने की इजाजत रहेगी। अगर इनकी रिपोर्ट मनफी रहती है तब भी इनके लिए 7 दिन का लाजमी खरतीनिया रहेगा और 8वें दिन दोबारा टेस्ट होगा और अगर वो रिपोर्ट भी मनफी रही तब इन्हें मजीद 7 दिन खुद निगरानी का जिम्मा दिया जाएगा। जिन ममालिक को एड्रेस के फहरिस्त में शामिल किया गया है इनमें बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल शामिल है। अगर इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन में स्क्रीनिंग के वक्त इलामात पाए जाए तो इन्हें फौरी आइसोलेशन में ले जाया जाएगा और दवाखाने से रुजू कर दिया जाएगा। अगर इनकी रिपोर्ट मनफी रही तो इनके नमूनों को मज़ीद मुआयना और जायजे के लिए भी भेजा जाएगा। फिर इन मुसाफिरीन को दूसरे मरकज को रवाना करते हुए ज़रूरत के मुताबिक इलाज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी परवाज़ों से दीगर ममालिक से आने वालों को एयरपोर्ट से बाहर जाने और इन्हें 14 दिन तक अपने आप की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शहर के गौतम नगर में वाक़े अरुंधति बंधु सेवा मादिगा संगम के 25 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र
सिल्वर जुबली प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निजामाबाद में वाक़ गौतम नगर के पास अरुंधति बंधु सेवा मादिका संगम के 25 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र सिल्वर जुबली प्रोग्राम शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर धनपाल सूर्य नारायण ने शिरकत की और इनके साथ कॉर्पोरेटर शिवाचरण कृष्णा रामा, साबिक़ा कॉर्पोरेटर साई राम ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने अरुंधति बंधु सेवा मादिका संगम के 25 साल मुकम्मल होने के मद्देनजर शानदार पैमाने पर सिल्वर जुबली प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अव्वाम मुस्तक़बिल में आला ओहदों पर फाइज होकर कौम की खिदमत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में अरुंधति बंधु सेवा संगम के सदर श्याम राव, नायब सदर ईरैया बाबू, जनरल सेक्रेटरी गड़म स्वामी, आरेपल्ली श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। పార్టీలకు అతీతంగా ఏ కార్యక్రమాలు అయినా కానీ మనం అదే విధంగా చేసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా అందరం మనసు విప్పి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం. ఖచ్చితంగా మన వర్గం ముందుకు సాగాల్సిందే. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనమందరం కూడా, మీరు కూడా అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందాలని, ముందుకు సాగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ एयरपल्ली के मुकाम पर जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव व केसीआर नौजवान की तंजीम के मेंबरान की जेर निगरानी दीक्षा दिवस का शानदार इनेकाद। एयरपल्ली मंडल के मुकाम पर आज दीक्षा दिवस के पेश नज़र जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और केसीआर नौजवान की तंजीम के मेंबरान ने प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब करते हुए टीआरएस सरबराह कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव की जेर क़यादत तवील और सब्र आजमा जद्दोजहद के बदले रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इख्तियार पर फायज होने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करवाते हुए किसानों के मसाइल की किसी के लिए मुख्तलिफ फलाह स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी व मसरत होने का इजहार किया। ప్రియతమ నాయకులు మన ముఖ్యమంత్రి గారు 29/11/2009లో మరి తెలంగాణ కోసం దీక్ష అమర నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించడం జరిగింది. 9/12/2009 నాడు మరి ఏదైతే అమర నిరాహార దీక్ష ఉన్నదో కేసీఆర్ గారు చచ్చుడో తెలంగాణ వచ్చుడో అనే నినాదంతో మరి దీక్ష కొనసాగింది. అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా, తెలంగాణ అంతా 10 జిల్లాలు ఒక అగ్నిగుండం లాగా తయారైంది. మరి ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఇచ్చే పరిస్థితి మరి కేసీఆర్ గారు అమర నిరాహార దీక్షతో ఏర్పడింది. అప్పుడు बोधन में मुनक़िद होने वाली नाबालिग लड़कियों की शादी को ICDS मेंबरान की जानिब से रोका गया। बोधन के मुकाम पर मुनक़िद होने वाली नाबालिग लड़कियों की शादी की मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर ओहदेदार फौरी मुकाम पर पहुंचकर शादी को रोक दिया गया। वो बातज़ा ओहदेदारों ने नाबालिग लड़कियों के माँ बाप को काउंसलिंग करते हुए नाबालिग लड़कियों की शादी करने से गुरेज करने की ताकीद। इस मौके पर बोधन CI प्रेम कुमार ने कहा कि ऐसे वाक़यात का इरादा न होने के लिए रेवेन्यू ओहदेदार व ICDS मेंबरान की जानिब से सख्त एहतियाती इक़दामात को रूबे अमल में लाने की हिदायत दी। तेलंगाना ओपन स्कूल में दाखिले की 6 दिसंबर आखिरी तारीख। जिब ओपन स्कूल SSC और इंटरमीडिएट में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात को किसी वजह तालीम हासिल नहीं किए हो या मदरसे में तालीम हासिल करने वाले आलिम हाफिज हज़रात के लिए ये बेहतरीन मौका है। दाखिले के लिए उम्र 15 साल तक 40 से दाखिले के लिए ज़रूरी इंसदाद जिनमें TC, रिकॉर्ड शीट, बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक होना लाजमी है। इसके अलावा आधार कार्ड, 2 दत पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। इन्होंने कहा कि डायरेक्टर तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी हैदराबाद ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि टास्क तेलंगाना ओपन स्कूल से SSC और इंटरमीडिएट में जारिया तालीमी साल 2021-22 में दाखिले के लिए 25 नवंबर तक 6 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात सेल नंबर 9849930516 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर।
तेलंगाना हुकूमत हर तरह के हालात से निमटने के लिए तैयार। कोरोना के मद्देनजर रियासती वज़ीर आला केसीआर ने रियासती वज़ीरा व महकमे तिब व सेहत के जिम्मेदारों के साथ अमल में लाया जायजा इजलास। मुत्तहदा जिले में दीक्षा दिवस की याद को ताज़ा करते हुए टीआरएस कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। शहर निजामाबाद में हजरत सैयद अली पाशा खादरी अल मुसावी अल जिलानी जानशीन हुजूर सैयद काजिम पाशा खादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आमद व शहर के मशहूर मारूफ ताजी सैयद अब्दुल करीम खादरी साहब की जानिब से तामीर करदा मस्जिद का किया गया। जिले में इलेक्शन कोड बर्खास्त तमाम ओहदेदार शहर में जारी तरक्याती कामों को जल्द जल्द मुकम्मल करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का इजलास से खिताब। शहर के मौसम में फिर आई बड़ी तब्दीली। सर्दी की लहर में इजाफा, आसमान अबर आलूद। 1 दिसंबर तक मज़ीद सर्दी की लहर का महकमे मौसमियात की जानिब से पेश क़यासी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।